Going to do is chapter 3 of DN Gujarati and Kotak, which deals with two variable regression with hypothesis testing. Hypothesis testing is the aspect that we had covered in the previous class, and we will be applying that hypothesis testing to our two variable regression analysis. And if you remember the class before that, we had found out the OLS estimators, B1, B2, which are going to estimate beta 1 and beta 2, the sample data, B1, B2, and the sample regression function estimating the population regression function. So B1, B2 are essentially estimators of beta 1, beta 2, which we don't know. So it's similar to something like we have a sample mean, and from a sample mean we want to find out the sample the population mean. So that kind of a hypothesis testing we are going to incur in this, and we are going to see the set of rules that are defined by the two variable regression model. There are certain assumptions, and when we consider those assumptions, we call it as a classical linear regression model. So we'll understand what's this classical linear regression model in this session as well. So let's start our discussion. We already know that we already have found out in the previous class. We have found out this particular regression equation. This particular regression is y dot hat, which is equal to b1 plus b2 xi. This is the non-stochastic form of regression line. Basically ये क्या है? ये आपकी sample regression line है, sample regression line. And इस regression line से आप ये जो point है, ये आपका y, ये इस line की equation है, ये आपका y I hat है, और इससे आप estimate करने की कोशिश कर रहे हो expected value of y given xi. ठीक है, और आप इक्वेशन कौन सी एस्टिमेट करो? दिस इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2. तो हमें अपने रिग्रेशन एनालिसिस से हमने देखा था कि हमारे पास एक स्टोकास्टिक वर्जन है जिसके अंदर इसमें प्लस EI आ जाता है. हम EI को मिनिमाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू B1 एंड B2. उससे हमारे पास B1 एंड B2 की कुछ वैल्यूज आती हैं, वो हमारे पास वैल्यूज ये आते हैं. एंड द मेथड दैट वी यूज, जो मेथड यूज किया था वो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज किया था. देयर आर अदर मेथड्स एज वेल, बट दिस इज व्हाट वी यूज्ड. Why we use ordinary least square we'll see in this chapter again. Now अब हमें ये देखना है कि how good is this estimated regression line, how good this is with respect to the true population function, which we don't even know. So that is our challenge in this chapter. Then moving on, now we know that xi's in this entire equation, when we know yi is a function of beta 1 plus beta 2 xi plus ui, we know this is non-stochastic, these are fixed, this is non-stochastic. That means whatever changes happens in ui is being reflected in yi as well. So that is what is given. Since the stochastic term ui is added to the non-stochastic term x, which is fixed, to generate yi, so yi also becomes stochastic. So whatever you map in ui, if this is a random variable, it makes yi also a random variable. And that therefore the most important thing, जो सबसे important चीज है वो है कि आप ui के ऊपर क्या assumption लेते हो. क्योंकि अगर आप ui के ऊपर कुछ assumptions लोगे तो वो assumptions valid हो जाएंगे yi के ऊपर भी, इसके ऊपर भी valid हो जाएंगे. एंड बाद में हम जाके इस चैप्टर में देखेंगे कि इसके ऊपर जब हम नॉर्मेलिटी की अजम्पशन लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अजम्पशन इसके लिए भी होल्ड ट्रू कर जाती है. ठीक है, सो दिस इज वन थिंग, एंड दिस इज व्हाई वी नीड टू हैव स्पेसिफिक अजम्पशंस. क्योंकि ये यूआई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूआई कैसे जनरेट हो रहा है इसके ऊपर हमें अजम्पशंस लेने की जरूरत है. एंड वो सारी जो अजम्पशंस हैं वो the omnibus term, जो envelope term है उसके लिए, that is called as classical linear regression model, जब आप ये सारी assumptions लेके चलते हैं. So imagine this as, हम perfect competition को जब हम assume करते हैं तो हम कहते हैं infinite number of buyers and sellers such that each buyer and each seller does not have any command in the market.
and you know that every agent is an extreme agent in the sense he has complete information. Then you have firms as a price taker, only industry is a price maker. तो ये जो बहुत सारी assumptions हम perfect competition में लेके चलते हैं, if you see in real life ये सारे assumptions hold true नहीं करते हैं. तो इसका मतलब हम ये जो क्लासिकल जो मॉडल है जिसमें बहुत सारी assumption है, हम ये क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज दिस फॉर्म्स एज द बेस मॉडल, और एक एक करके जब हम ये assumptions हटाना शुरू करते हैं तो हमारे पास नए नए मॉडल आना शुरू होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब आप परफेक्ट कंपटीशन में हो तो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, ठीक है. उसके बाद अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा डिमांड का रोल ले आते हो तो आप मोनोपोलिस्टिक मार्केट में आ जाते हो. फिर उसके बाद आप ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में आ जाते हो. फिर उसके बाद आप मोनोपोली में आ जाते हो. तो इस तरीके से आप assumptions रिलैक्स करके मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो. सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास जो assumptions हैं वो हम रिलैक्स कर सकते हैं, एंड उसके बाद हमारे पास एक डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स बनेंगे और उसके हम एनालिसिस देख सकते हैं. तो ये वाला चैप्टर थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर, थर्ड चैप्टर टू वेरिएबल रिग्रेशन है, फोर्थ चैप्टर मल्टीपल वेरिएबल रिग्रेशन है, और उसके बाद जो है जो सारे चैप्टर्स होंगे उसके अंदर हम ये जो assumptions है इसको रिलैक्स करेंगे, एंड रिलैक्स करके उसके बाद उसके implications देखेंगे, एंड उसके बाद उसका डिटेक्शन देखेंगे कि ये assumption हटाने के बाद क्या OLS एस्टिमेटर्स पे क्या फर्क पड़ता है, एंड फिर उसके बाद उसकी रेमेडी भी देखेंगे. So this is going to be our entire goal in this course. Moving forward, हमारा पहला जो assumption है is that the regression model should be linear in parameters. ये linearity की बात हम OLS estimators में भी एक बार कर चुके हैं. That if you remember कि xi जो होना चाहिए, ये जो हमने estimator लिया था, this estimator should be a linear function of all the individual values x1 x2 till xn. इसका linear function होना चाहिए. Similarly हमारे पास जो assumption यहाँ पर है वो है कि it's linear in parameters and may or may not be linear in variables. तो ये जो parameters हैं ये linearly associated होने चाहिए, इनकी डिग्री जो होनी चाहिए वो 1 के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है. बट ये इनकी डिग्री चेंज हो सकती है. जब आप इसकी डिग्री चेंज कर दोगे xi की तो आप डिफरेंट फंक्शनल फॉर्म में आ जाओगे. हम फिफ्थ चैप्टर में फंक्शनल फॉर्म्स देखेंगे कि कैसे कैसे फंक्शनल फॉर्म जब चेंज होता है तो ये B2 की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाती है. राइट नाउ अगर आप देखो तो मैं डेल्टा yi अपॉन डेल्टा xi करूंगा तो मेरे पास बीटा 2 क्या आ रहा है? बीटा 2 इज द चेंज इन xi. If there is 1 unit change in xi, how many units change in y? It's b2 which is constant, ठीक है. तो एक तरीके से स्लोप दे रहा है ये. सिमिलरली अगर आप log कर दोगे तो ये आपको ग्रोथ रेट दे देगा. तो डिपेंडिंग ऑन कि आप इस xi और इसके बीच में क्या रिलेशन लेते हो, इसका फंक्शनल फॉर्म कैसे हो जाता है, किस डिग्री पे है, उस पे आपका रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा बिटवीन xi एंड yi, which we will see in the functional form chapter. ये हम functional form में देखेंगे. Then we already understood the second assumption, which is that xi is uncorrelated with the disturbance term ui, which essentially means that xi वैसे ही non stochastic है तो वो अपने आप ही assumption fulfill हो जाती है क्योंकि हमने assume किया हुआ xi fixed है. तो xi fixed है तो expected value of xi ui हमें in any case ही 0 हो जाएगी. Moving further ahead, third assumption क्या है कि the expected mean of disturbance term is 0. This we already know कि ये हमें क्या चीज चाहिए कि conditional disturbance जो होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए, क्योंकि ये जब मीन आप कह रहे हो इसका मीन का मतलब ही क्या है कि ये वाली सारी वैल्यूज और ये वाली सारी वैल्यूज जब आप ऐड करते हो तो any deviation from mean summation ui minus u bar should always be equal to 0. So तभी तो वो conditional mean आया है. So for at a particular xi ui expected value of ui should be equal to 0. उसके बाद fourth assumption is of homoscedasticity. This is a very important assumption. This assumption basically means कि जैसे जैसे आपका xi change हो रहा है जो आपका errors का जो variance है वो unchanged रहता है. To give you the perspective here, it is also called as equal variance. So what is this equal variance? जब आपने x को 5000 लिया था, जब आपने इसको 15000 लिया था और जब आपने इसको 25000 लिया था, तो यहां पर वेरिएशन आया था कुछ. ये डिफरेंट ये
लाइन क्या दिखा रही है, ये लाइन दिखा रही है डिफरेंट डिफरेंट वाई आईज, ये दिखा रही है कि इस लेवल ऑफ इनकम पे किसी का ये यहाँ पर वाई आई क्या है, ये है सैट स्कोर, किसी का सैट स्कोर ज्यादा आया, किसी का कम आया, किसी का इधर आया, किसी का इधर आया, इन सब का जब आपने एवरेज लिया तो ये आया। बट इसका जो इन सारे स्कोर्स का जब आप वेरिएंस देखोगे, दिस इज द इंटायर वेरिएंस, तो जब आप इसका वेरिएंस देखोगे तो जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट है अक्रॉस ऑल एक्साइज, ये वेरिएंस चेंज नहीं हो रहा है। This is the assumption of homoscedasticity. That means the expected value of ui at given xi का जब आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, या वेरिएंस, जब आप इसका वेरिएंस भी देख सकते हो, जब आप इसका वेरिएंस देखोगे तो या वेरिएंस ऑफ ui given xi that will be constant as sigma square. So ये हमेशा आपका सेम रहेगा। जबकि आप हेट्रोस्केडास्टिसिटी अनइक्वल वेरिएंस देखोगे तो यहाँ पर वेरिएंस ये है, यहाँ देखो अब वेरिएंस बढ़ गया, यहाँ वेरिएंस कम हो गया, यहाँ वेरिएंस और कम हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज चेंजिंग वेरिएंस। दिस इज इन दिस केस यू विल, ये आपका इसका एग्जांपल है, इसको आप लिखोगे वेरिएंस ऑफ ui गिवन xi इज इक्वल टू सिग्मा i स्क्वायर, कि हर xi पे वेरिएंस अलग अलग आ रहा है। अभी हमारा अजम्पशन ये लेके चल रहा है, हम ये लेके चलेंगे, एक चैप्टर आएगा जिसके अंदर हम हेट्रोस्केडास्टिसिटी को कंसीडर करेंगे, होमोस्केडास्टिसिटी के अजम्पशन को हम ड्रॉप करेंगे और फिर देखेंगे कि इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है अगर ये डेटा में होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको होमोस्केडास्टिक डेटा मिलेगा। देन दिस इज योर अजम्पशन। एंड एक और चीज साथ में प्लीज देख लो कि यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि ui का वेरिएंस जो है वो सेम है, तो इसका ये भी मतलब है वेरिएंस ऑफ yi गिवन xi इज आल्सो इक्वल टू दिस, क्योंकि जब आप ui की बात कर रहे हो तो आप अल्टीमेटली yi की बात कर रहे हो, क्योंकि बाकी सारी जो टर्म्स है वो फिक्स्ड है, b1 बीटा1 बीटा2 और xi तो वैसे नॉन स्टोकेस्टिक है तो फिक्स्ड है, तो जो ui के लिए अजम्पशन है वो yi के लिए भी ऑटोमेटिकली बन जाती है, ठीक है। सो दैट इज, प्लीज रीड दिस एज वेल, that is what is given. Then you have another assumption called no autocorrelation. What is no autocorrelation? No autocorrelation means कि एक एरर दूसरे एरर के साथ कोरिलेटेड नहीं है। Now if you see, हमने क्या किया है, हमने दो एरर्स को प्लॉट किया। फॉर एग्जांपल एक yi है, वो क्या है, yi is equal to beta1 plus beta2 x1 plus u1, ठीक है, एक ये है आपका, फिर एक ये 1 है, फिर एक y2 है विच इज बीटा1 प्लस बीटा2 x2 प्लस, हम कह रहे हैं कि ये इसके अंदर u1 और u2 के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। तो अगर हम एरर्स को प्लॉट करना शुरू कर दें डिफरेंट, और अगर उसके बीच में ऐसा कुछ रिलेशनशिप आ रहा है जो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है और ये ऐसा नेगेटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, इसको बोलेंगे नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। बट अगर कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज नो ऑटो कोरिलेशन, एंड दैट इज आवर assumption that the covariance of ui uj where I is not equal to j should be equal to 0. This is our assumption of no auto correlation. And because again मैंने जैसे बताया कि अगर आप इन दोनों को अनरिलेटेड मान रहे हो तो दैट मींस आपका कोवेरियंस ऑफ y1 एंड y2 भी 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये आप कह रहे हो कि एक y1 एक y दूसरे y से रिलेटेड नहीं है, रैंडम है कंप्लीटली। हाउएवर फॉर एग्जांपल आगे जाके जब आप फ्यूचर में कोशिश करोगे यू विल सी टाइम सीरीज डेटा जहां पर एक y दूसरे y को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल यू हैव लैग इफेक्ट्स, अगर आज आपने मॉनेटरी पॉलिसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया तो आपका मनी सप्लाई बढ़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट कई क्वार्टर्स तक रहेगा, तो एक YI का दूसरे YI पे इम्पैक्ट आता रहता है, तो उसके लिए आप कई बार सीरीज को स्टेशनरी भी करते हो। सो दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंट कंसेप्ट ऑल टुगेदर, बट राइट नाउ आवर assumption is again is that there is no auto correlation. फ्यूचर में अगेन ये नो ऑटो कोरिलेशन की आप वो हटाओगे assumption, and then you will see what is the detection method की ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट कैसे करते हैं, ऑटो कोरिलेशन का सोल्यूशन क्या है इसका, एंड बेसिकली रेमेडीज क्या है। और कई जगहों पे आपको ऑटो कोरिलेशन मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल रिमेंबर टाइम सीरीज डेटा में आपको हमेशा ऑटो कोरिलेशन मिलेगा, आपको उसको इस चीज को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। देन
उसके बाद उसको ऑटो रिग्रेसिव 1, ऑटो रिग्रेसिव 2 प्रोसेस AR1 AR2 बोलते हैं. अगेन an aspect that we will cover, we will not cover here, but we should definitely cover in masters. Then going to the sixth assumption. The sixth assumption says that there is no specification bias. Specification bias means कि आपने specify करते हुए कोई error नहीं लिखा, कोई error नहीं किया. For example, अगर आपका consumption का function होना चाहिए था ये, आपने उसको ऐसा नहीं कर दिया. अगर आपने इस तरीके का मॉडल बना दिया जबकि आपका थ्योरी इस तरीके का मॉडल है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिकेशन बायस या स्पेसिफिकेशन एरर, कि आपने जो मैथमेटिकल मॉडलिंग करी है वही आपने गलत कर दी है. सो दैट अगेन यू आर अज्यूमिंग दैट यू आर नॉट मेड एरर ऑफ. ठीक है. और अगर आप ऐसे एरर करोगे तो हम द लास्ट चैप्टर दैट वी विल कवर इन दिस सिलेबस will deal with specification error and what happens if there is a specification error. This chapter actually becomes important क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में, वो फर्स्ट उसमें एक आध क्वेश्चन इस चैप्टर से होता है, स्पेसिफिकेशन बायस के केस में क्या होगा. तो यूजुअली आई फाउंड दैट दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर चैप्टर 1, फॉर क्वेश्चन 1 in your examination. So this I've already told you about that why is these assumptions important. I've drawn the analogy with perfect competition. Coming to the variance and standard errors of ordinary least square methods. We already know B1 and B2. ये हमारे estimators हैं, ये हमारे estimators हैं. and ये estimators कहाँ से आए हैं? ये OLS method से आए हैं. I told you to go through my notes, and in my notes you will find out the method through which we have found out these OLS estimators. Now these OLS estimators जो होंगे ये भी तो random variable है. ये रैंडम वेरिएबल क्यों है? क्योंकि ये भी तो चेंज कर रहे हैं फ्रॉम सैंपल टू सैंपल. व्हाट डू वी मीन बाय दिस? रिमेंबर हमने कहा था कि जो मीन है वो सैंपल टू सैंपल, हमें पॉपुलेशन मीन, हमें पॉपुलेशन का पूरा मीन चाहिए, बट हमारे पास है कि एक सैंपल का मीन है. ऐसे हमारे पास 20 सैंपल आएंगे तो 20 सैंपल के मीन होंगे और इनका हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे which is called as sampling distribution of the estimator. तो सिमिलरली हमारे B1 B2 जो हमने निकाला, हमारे पास एक सैंपल था. इफ यू सी ये जो हमारे पास पूरा एग्जांपल था, ये क्या था? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का 28 कंपनीज का हमारे पास प्राइस इक्विटी वो था, और ये 28 कंपनीज के हमारे पास प्राइस इक्विटी थी. उसका हमने मीन निकाला और उसको हमने फिट किया, तो हमारे पास एक B1 और एक B2 आया. ऐसे ही मैं एक और सैंपल ले लेता हूँ 28 कंपनीज का या 30 कंपनीज का 35, तो मेरे पास एक और B1 B2 आ जाएगा. ऐसे जितने मैं सैंपल्स लूंगा उतने ही मेरे पास B1 एंड B2 आ जाएंगे. दैट मीन्स जैसे x बार जो था वो एक रैंडम वेरिएबल था, वैसे ही ये भी तो एस्टिमेटर है. तो ये दिस इज एन एस्टिमेटर ऑफ β1 एंड β2. ये भी एक रैंडम वेरिएबल हो जाएगा. तो अब रैंडम वेरिएबल है तो सैंपल टू सैंपल चेंज करेगा एंड देयर विल बी सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी. सो वी नीड टू नो व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ दिस सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी. वी ऑलरेडी नो दैट दिस शुड हैव अ मीन, अनबायस्ड होना चाहिए. रिमेंबर हमने अनबायस्ड के बारे में बात करी थी कि दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार शुड बी इक्वल टू म्यू. तो सिमिलरली द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ B2 should be equal to β2, तभी तो हम कहेंगे कि अनबायस्ड एस्टिमेटर है. एंड उसका जो वेरिएंस है वो B1, वेरिएंस ऑफ B1 ये है, वेरिएंस ऑफ B2 ये है. Now you need to remember, I request you to remember the proofs for these. Every year they ask, every alternative years they ask you the proof for this. This proof is particularly highlighted in my notes. If you see my notes on page number 11 of my notes, I've drawn this linear unbiased. All of this is given, and we have found out the way of calculating the standard error of this. And one thing is this: the other proof that you need to do is this: the covariance between B1 and B2. Remember, I told you that β1 hat and β2 hat is nothing but B1 and B2. And then another thing that you need to know is that this has the minimum variance. This is an unbiased estimator. This is the third thing. This is the third proof. These are the three proofs that you need to do for your final examination. This is extremely critical. So please go through these three proofs.
Apart from that, yes, these are the three proofs that you definitely need to go through. Let me come back to this. So for this, you have to follow my class notes. We also know that we have also seen in our class notes that since we do not know this variance of B2 is equal to sigma square upon summation xi square, and we do not know sigma square because we don't have the values of y. So that's why we estimate this as well, and the way of estimation is this summation ei square divided by n minus 2. What is this n minus 2? This is the degrees of freedom, and the 2 degrees of freedom are lost to calculate b1 and b2. That's why these are 2 degrees of freedom. When you will have n variable regression, so इसमें क्या है, इसके अंदर अभी आपका regression क्या था, 2 variable regression था. 2 variable regression के अंदर जब आप वेरिएंस को एस्टिमेट करते हो तो आपके पास आपका आता है समेशन ei स्क्वायर अपॉन n minus 2. बट अगर ये 3 वेरिएबल रिग्रेशन होगा तो ये n minus 3 हो जाएगा, और ये अगर k वेरिएबल रिग्रेशन होगा तो इसको जनरलाइज्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, समेशन ei स्क्वायर upon n minus k. This is the generalized form of your regression of your standard error of regression. Now this is also called a standard error of regression. ठीक है, ये देखो, this is called a standard error of regression. Remember this term, this is standard error of regression. And जो आपका standard error of B2 is, this is the other term that you need to remember. Please remember these two terms, xi square and the value of B2, summation xi yi on summation xi. ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए. These will be very useful. Again, I'm pointing out B2 की बाकी सारी values भी याद करना कि कैसे आता है B2 के और कैसे specification forms हैं, and बाकी ये वाले इसकी derivation and ये जो minimum, ये जो हमने variance निकाला, इसकी variance कैसे आ रहा है, इसकी derivation, और ये minimum variance कैसे है, इसकी derivation. These are extremely important for your final exam. Let's see our example. अच्छा. Now, before discussing before having discussion on the hypothesis testing, we need to know that since B1 and B2 are random variables, we must have their sampling distribution. हमें sampling distribution पता होनी चाहिए. But if you see B1 and B2 both are dependent on EI. Both are dependent on EI. Basically, both are dependent. B1 and B2 both are dependent on. See, this is if you see B2, this is summation xi yi upon summation xi square. So यहाँ yi है. Yi is dependent on what? Yi is dependent on ui. तो अब ये ui का फंक्शन हो गया, लीनियर फंक्शन हो गया. सिमिलरली अगर आप इसका वेरिएंस देखोगे तो वेरिएंस में भी आपको मिल जाएगा ये टर्म. वेरिएंस क्या होता है B2 का? वेरिएंस ऑफ B2 इज सिग्मा स्क्वायर एंड समेशन xi. दैट मींस ये किस चीज पे डिपेंडेंट है? ये चीज डिपेंडेंट है कि yi का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. yi का डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज पे डिपेंडेंट है? ui के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वही उसको स्टोकास्टिक बना रहा है. दैट मींस वेदर यू टॉक अबाउट B1 और B2, ये दोनों के दोनों डिपेंडेंट है ui पे. तो जो ui की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो yi की डिस्ट्रीब्यूशन को इंपैक्ट करेगी, और जो yi की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो अल्टीमेटली B2 और B1 की डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करेगी. So that is why the entire chapter or the entire analysis that we do is actually focusing on the assumptions that we make on this term ui. क्योंकि ui पे जो assumption होगी वो automatically ei पे हो जाएगी, क्योंकि ei is an estimate of ui. So that is why this is very important. Now keep this in mind that ui की assumption is extremely important. So the OLS method is not just popular because of the strong properties that it has in terms of the blue properties, which says basically अगर आपकी which is also summarized by the Gauss-Markov theorem. What is this Gauss-Markov theorem? This theorem says that if your assumptions of classical linear model, जो हमने 6 assumptions करी थी वो, if those hold, then the OLS estimators will give you minimum variance, will give you blue estimates. This is another thing that that is often asked, कि prove that the OLS estimators are blue.
तो आप उसको पहले लीनियर प्रूफ करोगे, फिर उसके बाद उसको अनबायस्ड प्रूफ करोगे, फिर उसके बाद आप उसको मिनिमम वेरिएंस प्रूफ करोगे. So all of this is a part of is part of sub parts of your question. Please go through this. Then उसके बाद what are the properties? अब हमें पता है कि B1 and B2 are linear estimators because they are linear function of random variable y. And हमें पता है कि ये random variable y क्यों है, क्योंकि ये ui जो है वो random variable है. ठीक है. They are unbiased estimators. They are unbiased estimators. Remember we did in the last class that unbiasedness is a repeated sample property. That means जब आप बहुत सारे samples लेना शुरू करो, याद है एक sample से हमारे पास एक B1 B2 आया है which is from sample 1. ऐसे ही हम जब n samples लेंगे तो हमारे पास n B1 B2 आ जाएंगे. तो ये जो इनका जब हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, इनका जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, B1 या B2 का जब डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे, तो जब उसका मीन देखोगे तो उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो मीन है वो एक्चुअल पॉपुलेशन मीन के पॉपुलेशन वैल्यू के इक्वल हो जाएगा. That is called as unbiasedness. We have already seen this in the previous class. Similarly, जो आपका error, जो आपका variance है, the estimated value of variance, if you remember, variance को हम estimate कैसे करते थे, chi square से, ठीक है. तो उसका जो estimate है, उसका जो expected value, that will also be equal to the population variance. तो variance भी जो है वो भी unbiased है. OLS estimator का variance भी unbiased है. This is a very important property. Again, I have already asked you to go through the proof of that. These are efficient as well. Efficient in the sense that they have minimum variance. Among the class of all other linear unbiased estimators, the OLS estimators have the minimum variance. This is the third proof that I want you to go through. Everything is given in my notes with all the steps. There's no step that is missing there. And by the way, this is all these proofs are given in your other readings as well. So you have other readings. So if you go through those readings, then you will find out the proofs for that as well. I have done the proofs according to the Gujarati Portal, the next subsequent book to this particular book, which is Basic Econometrics. ठीक है. जस्ट गो थ्रू द मोंटी कार्लो एक्सपेरिमेंट. वो बेसिकली अनबायसनेस को जब आप मल्टीपल सैंपल्स लेते हो तो आप देखते हो कि हमने ये सारे डिफरेंट सैंपल्स लिए, एंड ये जब सैंपल्स लिए तो हमारे पास ये मीन आया, ये इसका मीन आया, विच इज, और ये इसका ओवरऑल इतने सारे सैंपल्स जब लिए हमने तो उसका जब मीन निकाला तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन which is B2. This is almost equal to the population mean of B1, and this is almost equal to the variance of the entire data. So Monte Carlo experiment के बारे में उसके थ्रू बात करेंगे. Moving to the sampling or the probability distribution of estimators. As I have told you that to derive the distributions of OLS estimators B1 B2, we need to add one more assumption, which is the seventh assumption. Please make sure that this is extremely well marked, because this is the most important assumption which talks about कि जो आपका एरर टर्म है, ये जो टर्म है, ये आपका जो टर्म है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन एज 0, क्योंकि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui टू बी इक्वल टू 0. ठीक है, क्योंकि एरर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम कह रहे हैं कि वेरिएंस जो है उसका सिग्मा स्क्वायर है विच इज कांस्टेंट. दैट इज ये कहां से है, ये आपका है होमोस्कैडास्टिसिटी से. ये आपकी होमोस्कैडास्टिसिटी की असम्पशन से आया, और ये आपकी उस असम्पशन से आया कि आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ui इज इवन xi इज इक्वल टू 0. तो इस असम्पशन से हम आगे चल रहे हैं, एंड बिकॉज ये असम्पशन होल्ड करती है इसलिए yi पे भी वही असम्पशन आ जाती है, एंड yi पे क्योंकि ये असम्पशन आ जाती है इसलिए अब हम बाकी चीजों पे भी असम्पशन ले सकते हैं यूजिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम. Central limit theorem is another thing that we understood in the last session, जो basically कह रहा था कि whether you have a population which is normally distributed or not normally distributed. If the sample size is sufficiently high, then the sampling distribution from that particular population will always be normally distributed. तो ये हमने उस बारे में बात करी थी last class में, but let's see in this context.
तो ये कह रहा है कि if there are large number of independent and identically distributed random variables, remember लास्ट क्लास में हमने IID के बारे में बात करी थी कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के बारे में बात करी थी कि हमने जो जितना भी सैंपल लिया है हमने एक ही पॉपुलेशन से लिया है, ठीक है। दैट मीन्स कि वो जो जितना भी सैंपल है वो एक आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, ये पॉपुलेशन है उसके अंदर से जो सैंपल्स आ रहे हैं, ये सैंपल्स जो आ रहे हैं ये सारे सेम आइडेंटिकल पॉपुलेशन से आ रहे हैं, और ये इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं। इंडिपेंडेंट कैसे कि जब हम एक सैंपल लेते हैं, सपोज ये पॉपुलेशन में 100 आइटम्स हैं, तो हमने 10 आइटम ली, तो हमने जो वापस नेक्स्ट सैंपल लिया तो आइटम्स वापस हमने अंदर रख दी, सो विच बिकम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। तो this is the second aspect, and what this says is that if there is a large number of independent and identically distributed random variables, then the distribution of their sum tends to be normally distributed as the number of such variables increase indefinitely. तो जैसे जैसे आपका सैंपल साइज जो है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो उसका सम है वो भी रैंडम वेरिएबल्स का सम है वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता जाएगा। तो इफ यू सी यूआई क्या है, यूआई रिप्रेजेंट्स ऑल दोज थिंग्स व्हिच इंपैक्ट वाई बट आर नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडल। रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ यूआई। यूआई क्या बोलता था? यूआई बोलता था कि ये रैंडम एरर है, ये वो चीजों का इंपैक्ट है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सैट स्कोर इंपैक्ट होता है फैमिली इनकम से, बट फैमिली इनकम के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें जो इंपैक्ट करती हैं सैट स्कोर को। कितने घंटे पढ़े, किस फैमिली से आ रहे हो, कौन से स्कूल गए थे, कौन से कोचिंग गए थे, ये सारे भी तो फैक्टर्स हैं। ये सारे रैंडम फैक्टर्स इस यूआई के अंदर इनकैप्सुलेटेड है। तो जब हम कह रहे हैं कि यूआई जो है वो रैंडम है, तो दैट मीन्स कि उन सारे रैंडम वेरिएबल्स में ये उनका एक सम है। So the error terms represent influence of all those factors which affect YI but are not specifically included. All these factors are random. अगर ये रैंडम नहीं होते तो हमने मॉडल में ऑलरेडी डाल दिया होता। अगर मॉडल हमें पता है कि और सारे फैक्टर्स हैं और वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं तो हम उसको ऑलरेडी इंक्लूड कर लेंगे। अभी हम 2 वेरिएबल रिग्रेशन में बात कर रहे हैं। जब हम मल्टीपल वेरिएबल रिग्रेशन में आएंगे तो हम 5-6 वेरिएबल्स ले लेंगे और जो बाकी सारे वेरिएबल्स हैं उनको हम बोलेंगे वो रैंडम इफेक्ट है, हम नहीं बता सकते वो क्या है। एंड यूआई क्या है? यूआई इज द सम ऑफ ऑल रैंडमनेस। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आप एक आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से एक इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रैंडम वेरिएबल लेते हो और वो एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर सम टेंड्स टू बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो यूआई है ये सम किस चीज का है? ये रैंडम चीजों का सम है, तो ये भी तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। So if we let UI represent some of these forces, some of independent and identically distributed random variables, ये वो सारे वेरिएबल्स हैं जो हमने मॉडल में नहीं डाले बट वो इंडिपेंडेंट है एंड आइडेंटिकली इंपैक्ट कर रहे हैं, तो हम CLT से सीधा बोल सकते हैं कि CLT कहता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने आप में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। So by invoking CLT we can assume that error also follows a normal distribution. So remember this thing because this is extremely important कि UI की जो normal distribution की assumption है वो कहाँ से आ रही है? वो CLT से आ रही है। And the mean is 0 and the variance is homoscedastic. ये हमने already बात कर चुके हैं। And हम already एक और proof के बारे में बात कर चुके हैं। Again, if you see my class notes, you will find out 7-8 theorems. आपको कुछ theorems मिल जाएंगी। I will just go through these theorems. I'll just show you where these theorems are. तो आपको ये पेज नंबर 28-29 पे कुछ theorems मिल जाएंगे और 8 theorems. Again, this is not a part of your course, but at the same point of time, these are theorems which we use generally. For example, अगर normally and independently random variable है, तो उनका sum भी random variable है। अभी हमने देखा कि UI normal variable है। UI जो है अभी हमने देखा UI जो है वो normally and independently distributed variable है, and it is normally distributed with mean as 0 and variance as sigma square. तो the sum of all the अगर ऐसे बहुत सारे UIs को हम sum करेंगे तो वो भी normally distributed होगी। That means linear combination of normal and independent variables are themselves normally distributed. तो
this is another theorem from statistics, वो यहाँ पर mentioned है. Similarly बहुत सारी theorems हैं कि आपका relationship of normal distribution with chi-square distribution क्या है, normal distribution and chi-square distribution with t distribution क्या है. Similarly अगर दो independently chi-square distribution है तो वो f distribution को कैसे define करती हैं. तो ये सारी 8 theorems हैं. I request you to go through these theorems because these are extremely helpful to understand how normal distribution is actually related to a chi-square distribution, to a t distribution, to a f distribution. ये उन relationships के बारे में बात कर रहा है. उसके बाद आपका understanding जो है of the depth of the subject will be much clearer. Again, going back to our understanding, now we know that since any combination, any linear function of normally distributed variable is itself normally distributed, and we know, and you can prove that b1 and b2 are normally are linear functions of ui. Please check this again. So are functions of ui, and because ui is normally distributed, any linear combination of that is also normally distributed. And what is the mean? The mean is unbiased, and the variance is this. We know already the variance. The variance is summation sigma square upon summation xi. It must be noted that since this is normally distributed, ui is normally distributed, then yi is also normally distributed with mean as b1 plus b2 xi and variance as this. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो yi है, जो ui है, वो क्या है? a की xi के ऊपर जो सारे डिफाइंड है वो है. इसका मीन क्या होगा? इसका मीन इन सबका मीन क्या है? इस सबका मीन तो यही है जो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है, which is b1 plus b2 xi. ये आपका क्या कहते हैं मीन है, क्योंकि दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yi given xi, और वो ui पे डिपेंडेंट है. ठीक है, और उसका वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है, क्योंकि ये वाला वेरिएंस जो ui का वही yi का वेरिएंस है. Again, linear combination. Y is a linear combination of ui. Now, having understood that what is b1 b2 and how this is related to the ui, and how normality of ui actually has an implication of b1 and b2. Now we can go for hypothesis testing. Again, hypothesis testing के दो तरीके जो हमने देखे थे, एक हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच देखा था, दूसरा हमने टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच देखा था. हम ये दोनों अप्रोचेस फिर से देखेंगे. ठीक है, बट नाउ आई विल नॉट गो इनटू डिटेल बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट इन द प्रीवियस क्लास. नाउ हम इकोनोमेट्रिक्स में क्या करते हैं? हम इकोनोमेट्रिक्स के अंदर एक नल हाइपोथेसिस ले लेते हैं, और वो नल हाइपोथेसिस क्या लेते हैं? उसको बोलते हैं हम जीरो नल हाइपोथेसिस, which is also called Strawman hypothesis, which basically means हमारा अभी तक जो मॉडल बना था, वो मॉडल बना था कि SAT स्कोर इज इक्वल टू β1 प्लस β2 फैमिली इनकम. ये हमारा रिलेशनशिप था. ठीक है, और जब हमने इसका एनालिसिस देखा था तो हमारे इसकी वैल्यू भी आई थी 0.0013 का, which shows that there is a positive relationship between family income and SAT score. ये हमने निकाला अपनी सैम्पलिंग, जो हमने सैंपल हमने देखा था उससे हमें एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मिला. बट हम उस पॉजिटिव रिलेशनशिप को कैसे प्रूव करेंगे? इट इज सिमिलर टू प्रूविंग इन अ लीगल सिस्टम कि समवन इज गिल्टी. अब अज्यूम करके चलोगे कि वो बंदा गिल्टी नहीं है, दैट मीन्स वो क्राइम, उसने इस बंदे का इस क्राइम के साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं है. दैट मीन्स B2 जो है वो β2 जो है वो जीरो है. तो हम अगर इकोनोमेट्रिक्स के अंदर ये एग्जांपल एनालॉजी ले जाए तो दैट मींस हम ये कहेंगे, हमारा अजम्पशन रहेगा कि SAT स्कोर और फैमिली इनकम का कोई रिलेशनशिप है ही नहीं. अगर कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता, दैट मींस कि ये β2 तो जीरो होना चाहिए. दैट मींस हमारा अजम्पशन क्या है? β2 इज इक्वल टू जीरो. दिस इज गोइंग टू बी आवर नल हाइपोथेसिस. अगर हम सफिशिएंटली प्रूव कर पाए कि β2 जो है वो sufficiently different, is significantly different from zero, then we can say that yes, there is a relationship between family income and your SAT score. तो वो जो होगा वो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा. तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है? नल हाइपोथेसिस इज दिस. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस
can be B2 not equal to 0. This is the case of a two-tail hypothesis, two-tail test, because यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये B2 जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है. बट सपोज मैं कहता हूं कि सिर्फ पॉजिटिव रिलेशनशिप हो सकता है, तो हम क्या कहेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा कि B2 is positive and H naught जो नल हाइपोथेसिस है दिस इज दिस. रिमेंबर जो आप प्रूव करना चाह रहे हो वो आपका हमेशा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है. दैट इज व्हाई ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज आल्सो कॉल्ड एज रिसर्चर्स हाइपोथेसिस. तो जो रिसर्चर को प्रूव करना होता है वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताता है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो नल हाइपोथेसिस होता है. अगर आपको प्रूव करना है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली इनकम एंड सैट स्कोर, तो आप उसको पॉजिटिव नल हाइपोथेसिस ले लोगे और नल हाइपोथेसिस उसका कॉम्प्लीमेंट होता है. ठीक है. एंड टू प्रूव दैट योर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होल्ड यू हैव टू रिजेक्ट योर नल. तो जब आपका टेस्ट सिग्निफिकेंट आने का मतलब क्या होता है, आपका टेस्ट सिग्निफिकेंट आने का मतलब होता है कि यस यू कैन सिग्निफिकेंटली रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस इन फेवर ऑफ द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विद सर्टेन एरर्स व्हिच इज द टाइप 1 एरर. एंड तो इस तरीके से आप जब आप सिग्निफिकेंट किसी चीज को बोलते हो तो आप उस चीज को नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो. जो स्ट्रॉमैन हाइपोथेसिस है उसको आप रिजेक्ट कर रहे हो. और जब आप किसी टेस्ट को इनसिग्निफिकेंट बोलते हो तो उसका मतलब है कि वो ये फैक्टर सिग्निफिकेंट था ही नहीं. दिस इज क्लियर. सिग्निफिकेंट कब होगा, जब ये B2 सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो होगा. इनसिग्निफिकेंट कब होगा, जब ये B2 इनसिग्निफिकेंट होगा, दिस इज इक्वल टू जीरो. तो जब आपका नल हाइपोथेसिस वैलिड हो जाएगा तो इनसिग्निफिकेंट आपका रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है. ये हमने ऑलरेडी हमने हमारे न्यूमेरिकल एग्जांपल से देखा. नाउ टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, हमें पता है B2 का डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है. Z टेबल कैसे, Z इसको नॉर्मलाइज कैसे करते हैं. रिमेंबर नॉर्मलाइजेशन हमने लास्ट क्लास में देखा था दैट सैम्पलिंग मीन का नॉर्मलाइजेशन कैसा था, Z बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ X बार. हमने इस तरीके से देखा था. इस केस के अंदर हमने इसको रिप्लेस कर दो. हमारा इस केस में क्या था, दिस वाज एन एस्टिमेटर ऑफ म्यू. इस केस में क्या है हमारा, B2 इज एन एस्टिमेटर ऑफ बीटा 2. तो इस जगह पे हर जगह पे ये डाल दोगे. दिस इज योर सैंपल से जो आया, दिस इज योर पॉपुलेशन, ये हमारा स्टैंडर्ड एरर हमें ऑलरेडी पता है ये, एंड दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मलाइज कर दिया हमने इसे. ठीक है. ऑल यू सिंस यू डू नॉट, इसमें हमारा असम्पशन क्या है कि हमें ये पता है बट एक्चुअली पॉपुलेशन आपको ये नहीं पता होगा. आपके पास इसका एस्टिमेटर होगा and this estimator and this will be a t distribution with n-2 because इसको estimate करने के लिए आपके पास 2 degrees of freedom चलेगा, one to estimate B1 and other to estimate B2. So that is why this has a t distribution with n-2 degrees of freedom. तो आप इसको करोगे and ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया. ठीक है. Now अगर आप कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच की बात करो तो अब हम क्या करते हैं, सपोज हमने अपना जो एग्जांपल है उसके अंदर 10 ऑब्जर्वेशंस थी. सैट स्कोर के केस के अंदर हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन थी, तो हमारे पास डीएफ कितना बच गया, 8 डीएफ बच गए. अब हमारे पास हमने टू टेल टेबल के हिसाब से हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला एट. तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने हम पास टी डिस्ट्रीब्यूशन है, टी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक. हमने क्या देखा, कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% इंटरवल निकालना है. तो कैसे निकालोगे, तो टू टेल है तो यहाँ पर 2.5%, यहाँ पर 2.5%, ये 2.5% होना चाहिए, ये 2.5% होना चाहिए. दैट मींस आप t की वैल्यू देखोगे, t की वैल्यू एट 0.025 एंड एट df इज इक्वल टू 8. जब आप t की टेबल में जाके वैल्यू देखोगे तो आपको ये वैल्यू जो मिल जाएगी, ये मिल जाएगी पॉजिटिव में 2.306 एंड नेगेटिव में, बस ये आपके पास t की वैल्यू आ गई. और put it in this inequality, तो आपके पास B2 की एक रेंज बन गई. रिमेंबर दिस अगेन, इसका ये मतलब नहीं है कि 95% there is a 95% probability that इस रेंज में, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप बोल सकते हो कि there is a 95%, ये एक रैंडम वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पर आपने B2 की वैल्यू नहीं डाली, यहाँ पर आपने सिग्मा की वैल्यू नहीं डाली. तो दिस इज अ रैंडम वेरिएबल, रिमेंबर दिस. सो दिस बेसिकली सेज दैट that there's a 95% probability
that in this particular random variable you have your true b2. बट जब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हो, वंस यू पुट दी वैल्यूज, देन एक बार आपने ये वैल्यू पुट कर दी b2 की, एक बार आपने ये स्टैंडर्ड एरर पुट कर दिया, तो ये 95% प्रोबेबिलिटी नहीं रह जाती। उसके बाद ये बन जाता है कि out of 100 samples, in 95 samples you will get this। बट एक बार आपने ये जब वैल्यू पुट कर दी तो उसके बाद तो वो प्रोबेबिलिटी या तो 0 है या 1 है। एक्चुअली पॉपुलेशन, उसके अंदर पॉपुलेशन की जो b2 की वैल्यू या तो उसमें लाइक करेगी या नहीं करेगी। तो टिल द पॉइंट आप इसको रैंडम वेरिएबल लेके चलते हो तब तक तो आप ये प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हो। जब जैसे ही आपने ये वैल्यूज पुट कर दी, ये वाली वैल्यूज पुट कर दी, तो ये रैंडम वेरिएबल नहीं रहा, ये फिक्स हो गया है। और अगर ये फिक्स हो गया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी या तो 0 होती है या 1 होती है। ठीक है, which provides a 95% confidence interval for B2, that it is in repeated application 95 out of 100 intervals will include the true B2। now और ये जो है ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन है। दैट मींस अगर आपकी जो B2 की जो वैल्यू है वो इस रेंज में आ रही है, तो दैट मींस यू विल नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और अगर आपकी B2 की वैल्यू इससे बाहर आ रही है तो यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। चलिए देखते हैं इसको। ये आपका रेंज आ गया। रिमेंबर ये आपकी B2 की वैल्यू होगी एंड ये आपका इसकी वैल्यू होगी। जब आपने इसकी फिगर्स पुट करी तो आपके पास ये एक वैल्यू आ गई और ये एक वैल्यू आ गई ना, ये आपके पास रेंज आ गया, टोटल रेंज आ गई। ठीक है, नाउ सिंस दिस इंटरवल, अभी हमने B2 की वैल्यू क्या ली थी, देखो हमने B2 की वैल्यू क्या ली थी, हमने B2 को अज्यूम किया था कि वो 0 होगा। ठीक है, बट इस रेंज के अंदर 0 तो कहीं नहीं आ रहा है, ये पॉजिटिव से लेके इस पॉजिटिव के बीच में ही है। दैट मींस 0 तो कहीं यहां पर लाई कर रहा है। दैट मींस वो इसके एक्सक्लूजन वाले जोन में आ रहा है, इसके रिजेक्शन वाले जोन में आ रहा है, एक्सेप्टेंस वाले जोन में नहीं आ रहा। दैट मींस यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इन फेवर ऑफ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो ये आपके पास जब आपने ये वैल्यूज पुट कर दी तो ये रिमेंबर अगेन वी कैन नॉट से that the probability there is 95% probability that this equation includes the true B2, क्योंकि ये एक रैंडम वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स्ड हो चुका है, ये फिक्स आपने फिक्स वैल्यूज करनी है इसके अंदर प्रोबेबिलिटी होने की या तो 0 है या 1। ठीक है, एंड दिस इंटरवल डज नॉट इंक्लूड द हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ 0, क्योंकि आपने नल हाइपोथेसिस क्या लिया था, नल हाइपोथेसिस लिया था β2 = 0। I hope this entire analysis is clear. And remember this is I hope this analysis is clear to you, that this is how we have calculated through the confidence interval approach. Now as I've told you time and again that confidence interval approach is not an approach that you will usually follow. An easier approach, which I at least find easier, is the test of significance approach and especially the p value approach. आप सीधा p value निकाल दो, काम खत्म हो जाएगा। So what is this? आप सीधा t statistic निकालोगे, आपके पास ये है, this is the statistic that you're trying to find out. You already know that ये आपने assume की हुई वैल्यू है 0, तो आप simply जो भी आपने assume करी है numeric value उसको यहाँ डाल दो, estimator minus the hypothesized value upon the standard error of the estimator। उसके बाद आपके पास ये t की एक वैल्यू आ जाएगी। इस t की वैल्यू पे आप कंप्यूटेड t निकाल लो। बेसिकली 8df पे जो भी ये नंबर आएगा, सपोज ये नंबर आएगा आपका 5 point समथिंग आ रहा है, 5.43 आपका ये नंबर आया, ये आपकी t की वैल्यू आई। इसको आप चेक करो df8 के ऊपर इन योर नियर t टेबल। तो उसके बाद आप जो भी ये परसेंट है, आपके पास ये एरिया आ जाएगा। बेसिकली ये एरिया कितना है, इसके आगे का एरिया कितना है, और इसको आप कंपेयर करो। अब क्रिटिकल टी क्या था, आपका क्रिटिकल टी था, आपने इसको क्रिटिकल टी जो आपका t.025 पे था वो था आपका 2.3, और जो आपकी एक्चुअली कंप्यूटेड वर्सेस जो आपकी कंप्यूटेड टी है वो आपका कंप्यूटेड टी आया है 5. तो ये एनी केस उससे ज्यादा है। जब ये एनी केस कंप्यूटेड टी जो है वो जो आपका कंप्यूटेड टी है वो आपका इस टी से ज्यादा है,
तो आपका रूल क्या कहता है कि whenever your computed t is greater than your critical t, you will always reject the null hypothesis. क्यों? क्योंकि आपका इस रीजन में आ रहा है, आपका तो इधर तक ये आपका एक्सेप्टेंस जोन था, इसके यहाँ पर एक्सेप्टेंस जोन था और इसके यहाँ पर एक्सेप्टेंस जोन था, इसके यहाँ पर सारा रिजेक्शन जोन है, इसके साथ यहाँ पर सारा रिजेक्शन जोन है. So you will reject this null hypothesis. Another way to see this is through p value. आप इस t का एग्जैक्ट एरिया निकाल लो, ये कितना एरिया कवर कर रहा है ये एरिया. यू विल फाइंड आउट दिस एरिया इज 0.00. आपको ऐसे टी टेबल में मिलेगी नहीं क्योंकि टी टेबल इतनी ज्यादा डिटेल में डिफाइंड नहीं है. यू कैन गो टू अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एंड सी ये आपको 0.0006 है. ठीक है, आपका इतना चांस है 6 out of 10,000 samples you will make an error. ठीक है, this is what you are getting, this is the area that you are getting of rejection. और आपको कितना एक्सेप्टेंस था? आपका एक्सेप्टेंस था 2.5%, 0.025 था. तो जब भी आपका p वैल्यू विल बी लेस देन इक्वल टू अल्फा, आपका एक्सेप्टेंस रीजन, एक्सेप्टेंस एरिया आपका कम है आ रहा है आपका एरिया, तो आप यू विल ऑलवेज रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. दैट इज व्हाई p वैल्यू इज कॉल्ड एज एग्जैक्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या ऑब्जर्व्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. तो जैसे आपका ऑब्जर्व्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज लेस देन द क्रिटिकल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और द एक्सेप्टेड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो आप रिजेक्ट कर दोगे नल हाइपोथेसिस को. ठीक है, तो ये आपकी सिमिलरली आपकी ये पी की वैल्यू आ गई, हमारे पास एक क्रिटिकल टीज की वैल्यू है, उसके हिसाब से हमने रिजेक्ट कर दिया. एज आई टोल्ड यू दिस इज द प्रोबेबिलिटी वैल्यू एज पी वैल्यू. सिमिलरली वन टेल के लिए वो सारा का सारा ये जो क्रिटिकल वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगी क्योंकि सारी चीजें आपकी एक टेल पे आ गई. रिमेंबर आपका नल हाइपोथेसिस इस केस में क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विल बी β2 इज ग्रेटर देन 0 एंड इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा β2 इज लेस देन इक्वल टू 0. रिमेंबर हमेशा हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि वो टू टेल है कि वन टेल है. देन the next concept is the r square, the coefficient of determination. Now remember the coefficient of determination is small r square, and when you take this down to multiple variable regression, it's called as capital R square. There's no difference as such. But now let's see that what we have understood is in the hypothesis testing that we can test for each particular coefficient. We have tested for intercept, we have also tested for slope, and individually they came out to be significant. So now we want to know that how well does the SRF fit. So this overall goodness of fit of the regression lines were vis-a-vis. So how does, if we want to calculate how does the SRF actually fit the sample values, the actual y values. So that is what we need to find out. Now remember the stochastic version of the sample regression line. The stochastic version of the sample regression line was something like this. This was your sample regression line, which was yi hat is equal to b1 plus b2 xi, and this is your point yi, this is your actual point, and this difference is the ei. Now when we convert this into a deviation form, now what is so interesting about the deviation form is that जब आप इसको डेविएशन फॉर्म के अंदर जब आप ले जाते हो तो आप उसके बाद देखना चाहते हो कि आप एवरेज से कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हो. नाउ व्हाट इज दिस एवरेज से बेटर परफॉर्म करना? सी दिस. सपोज मैं आपको बोलूं कि आपको एस्टिमेट करना है कि एवरेज इनकम और आपको एवरेज इनकम एवरेज स्कोर के हिसाब से आपको एस्टिमेट करना है, तो क्या होगा? तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपका फैमिली इनकम है और यहाँ पर आपका सैट स्कोर है. तो आप कहोगे कि फैमिली इनकम का एवरेज आइडली जब लॉ ऑफ एवरेजेस आएंगे तो आप कहोगे कि यार ऑन एन एवरेज ये स्कोर ये फैमिली इनकम है विच इज गिवन बाय एक्स बार, एंड ऑन एन एवरेज आपके बहुत सारे स्कोर्स हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ऑन एन एवरेज क्या स्कोर आएगा सारे लोगों का मिला के, तो ये आपका वो स्कोर है. तो आप कहोगे ये एवरेज स्कोर है जो
इस क्लास का या इस पूरे पॉपुलेशन का होगा। बट ये तो वो एवरेजेस वाली बात हो गई। बट व्हाट आर यू डूइंग स्पेशल? तो ये जो रिग्रेशन लाइन है ये आपको बता रहा है कि जो वेरिएशन है y में, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये, बट सपोज आपका पॉइंट यहां पर y डॉट है, आप बता रहे हो कि इस y, ये जो y डॉट है ये एवरेज से इतना ज्यादा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है? क्योंकि इस जो स्टूडेंट है इसकी इनकम प्रोबेबली एवरेज इनकम से इतनी ज्यादा है। सो बिकॉज this person's average family income is more than the average income, you expect his average score, his score to be more than his average score। और वो कितना बता पा रहा है, that is what you need to find out। so suppose this is your regression line, so this is how much you are able to explain that at this particular family income, this difference of xi minus x bar is able to explain कि कितना ज्यादा स्कोर होगा इस स्टूडेंट का from the average score। so this is able to explain yi hat minus y bar, which is actually small yi hat। ये आपको ये स्कोर बता पा रहा है कि इतना आप बता पा रहे हो, बट इतना जो है वो आप अभी भी नहीं बता पा रहे हो। so which is yi minus yi hat, which is essentially the error term। so when you convert this into deviation form, your life becomes very easy because now you are only explaining the variation from what is already expected। so yi, just you write this in the small letter form, you will have yi is equal to yi hat, small yi hat plus ei, and this small yi hat in the non-stochastic terms is b2 xi। so basically ये क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है कि yi जो है वो y bar से कितना डिफरेंट होगा is being explained by b2 into xi x bar से कितना ज्यादा डिफरेंट होगा plus the error term। so this is how in very simple term this is being explained। और वो यहाँ पर पूरा आपका explanation भी दे रखा है। ये आपका x bar है, ये आपका y bar है। this is the variation in yi from the average। this is the average, this is the variation that you are able to explain, this is the variation that you are unable to explain। so this is how this works। and now if you square this term, you will get this equation। just square this term, you will have b2 as the constant as outside, and you will get this particular equation। so what this equation is telling you is the total, this is basically your total sum of squares, this is your ultimately this is your explained sum of squares, and this is your residual sum of squares। so जितना टोटल वेरिएशन है, टोटल वेरिएशन कितना है? ये जो आपका इनकम जो एक्चुअली में आपकी सैट स्कोर की जो स्टूडेंट का है और वो एवरेज से कितना दूर है। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो आपका एक्चुअल स्कोर माइनस द एवरेज स्कोर, टोटल वेरिएशन कितनी है, उसमें से आप कितना एक्सप्लेन कर पा रहे हो और कितना अनएक्सप्लेन्ड। so this is the relationship here। TSS is equal to ESS plus RSS। now you divide the entire thing by TSS, you will get ESS upon TSS plus RSS upon TSS। so what R square is, or small r square is, that how much of the total variation is your model able to explain। तो आपका मॉडल कितना वेरिएशन इन टोटल y को एक्सप्लेन कर पा रहा है as compared to the कितना एक्सप्लेन कर पाया as compared to total variation। so this is called R square। so you can write this as 1 is equal to R square plus ESS upon TSS। this can be further computed in number of ways। these are the different ways in which you can compute it। please remember these ways because this is quite important for your numericals। some of the numericals often use these equivalent derivations। then coefficient of correlation, again this is a concept that you would have already covered in your statistics, and that is nothing but the under root of R square। then moving forward to an important concept of normality।
नाउ रिमेंबर वी हमने हमने जो देखा था, हमने क्या देखा था कि नॉर्मेलिटी ऑफ यूआई जो है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है. दिस इज अ वेरी एसेंशियल assumption that we have, because on the basis of this assumption you were able to derive the PDFs of B1 and B2. Now how would you know? Now you don't have true error, so we have EIs as proxies of UIs. So how do we know that the residuals, जो हमने assumption लिया वो residuals का जो PDF है वो normally distributed है या नहीं है? One way to do it is through histogram. So what is a histogram? Basically आप सारे के सारे error, सारे के सारे yi माइनस y बार करोगे तो आपके पास एरर आ जाएगा. एक ऑब्जर्वेशन के लिए तो E1 आ जाएगा, ऐसे E2 आ जाएगा. आपके पास ये बहुत सारे एरर्स आ जाएंगे ऐसे. These are, for example, this is the actual y, this is the fitted I. तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ये आपके पास रेजिडुअल आ गया, और वो रेजिडुअल माइनस में कितना है, पॉजिटिव में कितना है, आपके पास इस तरीके से इसका रेजी प्लॉट in basically in when you go into Python or any statistical software, there is a command called resiplot. तो resiplot से आपको ये प्लॉट मिल जाएगा कि क्या कहते हैं एरर्स का प्लॉट कैसे चल रहा है. Now, अगर वो एरर्स के प्लॉट को अगर आप उसका क्या कहते हैं ग्राफिकल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ उनका हिस्टोग्राम बनाओगे, तो हिस्टोग्राम फॉर एग्जांपल स्मॉल एरर्स, देन लार्जर माइनस में एरर्स कितने हैं, तो आप जीरो के अक्रॉस माइनस एंड प्लस के अंदर वो सारे उसका हिस्टोग्राम बनाओगे. तो इस तरीके से अगर कुछ बन रहा होगा जिसके ऊपर अगर आप नॉर्मल ऐसे करके आप एक कर्व फिट कर पाओ, बेल शेप सुपर इम्पोज कर पाओ, so that will show that this has a kind of a normal distribution. So one way is this. Then the other way to do is there is a test called Anderson-Darling test. Now Anderson-Darling test is again it's कई जगह पर आपको मिल जाएगा a square का नीचे मेट्रिक मिल जाएगा. आप जैसे आप कंप्यूट करोगे अपना पूरा रिग्रेशन एनालिसिस either through in any of the software, take its data or reviews or for that matter command in Python. तो कई जगहों पे आपको या R के अंदर कई जगहों पे आपको ये Anderson-Darling टेस्ट से आपको a square स्टैटिस्टिक मिल जाएगा. रिमेंबर इसके जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब नॉर्मेलिटी का टेस्ट करते हो तो मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट है उसका जो नल हाइपोथेसिस होता है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. रिमेंबर दिस, क्योंकि यूजुअली हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रूव करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर हम दो टेस्ट की बात करेंगे, जॉक-बेरर टेस्ट एज वेल एज एंडरसन-डार्लिंग टेस्ट. इन बोथ द टेस्ट जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो अज्यूम करके चल रहा है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका वेरिएबल, एरर जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो दैट मींस ओनली इफ देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस देन ओनली यू विल रिजेक्ट. सो यूजुअली यू वुड नॉट लाइक टू रिजेक्ट द नल. आप नल के साथ ही चलना चाहोगे अगर आपको नॉर्मेलिटी की असम्पशन को होल्ड ट्रू करना है. तो इसके अंदर भी एंडरसन-डार्लिंग टेस्ट के अंदर भी एंड जॉक-बेरर टेस्ट के अंदर भी आपका जो null hypothesis होता है, what is Jacques-Berer test? It is based on two things. One is your skewness and the other is kurtosis. So skewness and kurtosis के basis पे these are the two concepts that you would have covered in stats. Basically किसी भी normal distribution का जो skewness होता है वो zero होता है. It's neither left skewed or right skewed, and kurtosis is 3. So this is how we define a normal distribution, और जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं. सो इसके अंदर ये आपका फॉर्मूला है, ये स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है, एंड इफ यू पुट SS0 एंड KS3 तो आपका JB का जो स्टैटिस्टिक है वो 0 आ जाएगा, which follows a chi-square distribution with 2 degrees of freedom. So this is the JB test, and again इसका भी जो null hypothesis है that assumes that you have normality, your variable is normally distributed. Then see, this is usually how your entire statistic comes out, whether you talk about in any of the programs. So this is a kind of a way that you show. एंड इसके अंदर हमने कोएफिशिएंट्स देख लिए हैं, इसके अंदर हमें स्टैंडर्ड एरर पता है, टी स्टैटिस्टिक पता है, हमने पी वैल्यूज देख लिए हैं, इसके अंदर हमें आर स्क्वायर पता है. देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड एडजस्टेड आर स्क्वायर व्हेन यू एडजस्ट फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो हम इसको देखेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर.
we already know what the standard error of regression is. Then we know the sum of squares of residuals. This is also what we know. This is again something that we will study in the later chapters. Then see, I was telling you about resi plot. See, this is how the resi plot looks like. Moving forward, a word about forecasting. Now, अभी तक जो हम बात कर रहे थे, हम वो किस चीज के बारे में बात करते हैं, हम एस्टिमेट कर रहे थे yi hat which was predicting expected value of yi at a given xi. Now let us think कि अगर हम forecast करना चाहें, out of sample forecast करना चाहें, what I mean is, suppose मैंने आपके पास regression line आ गई, आपके पास ये आपकी regression line है, इसमें मैंने एक इनकम डाल के देखी, ठीक है, वो इनकम थी 78,000. तो 78,000 जो मैंने इनकम डाली, यहाँ पर 78,000 डाला, तो मेरे पास एक एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई. सो बेसिकली व्हाट दिस शोज इज, जिस फैमिली की इनकम 78K होगी, उसका स्कोर जो होगा वो 534 के अराउंड है, उसका सैट स्कोर 534, ठीक है. बट जो एक्चुअल स्कोर होगा वो 534 तो नहीं होगा. दिस इज द एक्सपेक्टेड स्कोर. सो देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन yi एंड व्हाट यू हैव प्रेडिक्टेड. इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा. सो दिस, ऑल्दो दिस yi hat is an unbiased estimator. This is an unbiased estimator of this at 78,000. But the problem is this is not likely to be equal, क्योंकि ये sample to sample change होता रहेगा. So the difference between what you are forecasting and what you are getting is called the forecasting error. Now to assess कि ये फोरकास्टिंग एरर कितना हो सकता है, ये फोरकास्टिंग एरर का व्हाट डू वी मीन बाय फोरकास्टिंग एरर. एक सैंपल से हमने उठाया, तो ये याद है, ये हमने जो B1 B2 थे, ये एक सैंपल से आया था. दिस वाज फ्रॉम वन पर्टिकुलर सैंपल. एक और सैंपल से हमारा B1 डैश B2 डैश आता है. सो उस B1 B2 डैश को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अंदर 78,000 की फिगर डालते हैं, तो हमारे पास कोई और yi डैश आ जाता है. तो हम बेसिकली देखना चाहते हैं कि ये जो yi हैट है, ये डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि रिग्रेशन लाइन भी पूरी ऊपर नीचे स्लोवेल कर सकती है. इट विल डेफिनेटली पास थ्रू, रिमेंबर दिस सैंपल रिग्रेशन लाइन विल डेफिनेटली पास थ्रू वन पॉइंट व्हिच इज x बार कॉमा y बार. बट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सैंपल्स ये ऐसे स्लोवेल कर सकती है कहीं पर भी. तो जब ये स्लोवेल करेगी, तो ये स्लोवेल करके डिफरेंट आपको आपके पास yi हैट की डिफरेंट वैल्यूज देगी एट पर्टिकुलर xi. तो वो हम देखना चाह रहे हैं कि वो रेंज क्या हो सकती है, ठीक है. सो वी नो दैट द मीन, सो दैट मींस दिस y नॉट हैट is also a random variable जो ऊपर नीचे मूव कर जाएगा. And this has a normal, it also has a normal distribution with this as mean. Mean क्या होगा, which is the expected value. Expected value, we know that this will obviously give the expected value as expected value of y given x naught. So what is this? B1 plus B2 x naught. This is the expected value this will give, and this is the variance. Please see that how we derive this variance. Then what happens is, ये हमें ये नहीं पता, तो हम इसको estimate करने के लिए इसका t distribution use करते हैं. So when we use the t distribution, और जब हम इसका एक निकालते हैं, क्या कहते हैं, confidence interval निकालते हैं. So what we are doing is we are finding out the confidence interval of this particular thing. कि ये जो average है, ये कहां से लेके किस पॉइंट से लेके किस पॉइंट के बीच में लाई कर सकती है with a confidence interval. So we have this sampling distribution of y naught, and उसका हमने sampling distribution से हमने confidence interval निकाल दिया. See कि what is this showing? This is showing कि जो एक particular x naught पे जो आपका total जो आपकी regression line है, population regression line, वो किस रेंज से लेके किस रेंज के बीच में लाई कर सकती है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट सैंपल्स है, डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, ठीक है. सो we put all these values, हमने ये सारी values put करी. So we got that at 78,000 income, हमने सारी values put करी, at 78,000 income, your average SAT score can lie between 508 to 560. ये आपका 508 से लेके 560 के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है. और जो हमारा वन पर्टिकुलर केस आया था, वो एक पर्टिकुलर केस से आया था, which was 533. तो ये जो 533 आया था,
ये एक पर्टिकुलर केस है एग्जांपल से, बट ओवरऑल जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं एट दैट पर्टिकुलर एक्स नॉट, तो हमारे पास ये रेंज आ सकती है. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. एंड ये आपका फोरकास्टिंग एरर होगा. 533 माइनस ये प्लस ये सारे आपके फोरकास्टिंग एरर्स हैं. एंड इफ यू सी, आपका फोरकास्टिंग एरर जो होगा सबसे कम होगा मीन के ऊपर, और जितना ज्यादा आप दूर जाओगे आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल उतना ज्यादा ब्रॉडन अप होता जाएगा, एंड आपका फोरकास्टिंग एरर उतना ही ज्यादा बढ़ता रहेगा. तो आप हिस्टोरिकल रिग्रेशन से आप बहुत दूर की सैंपल वैल्यू को लेके आप प्रिडिक्ट, अगर आप यहाँ का प्रिडिक्ट करना शुरू कर दोगे तो दैट यू विल नॉट बी करेक्ट. उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस का इंटरवल का जो रेंज होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा. हमने ये 78,000 पे देखा तो हमारे पास ये इंटरवल आ गया कि आपकी जो रिग्रेशन लाइन है वो इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में कहीं भी लाई कर सकती है, फ्रॉम वन सैंपल टू अनदर सैंपल, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू गिव यू द फोरकास्टिंग एरर. So we should exercise great caution in extrapolating the historical regression line to predict the mean value of y associated with any xi. तो एक पर्टिकुलर xi पे अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहें yi को, तो वो जो है वो एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी जितना आप सैंपल मीन से दूर जाना शुरू कर दोगे. Then this is the entire concept that I wanted to discuss. This is again an important concept. Now what I want you to do is go through the questions of this particular chapter at the end of this particular chapter, and after completing the fourth chapter we can also have a look at the tenures and see that what all questions have we covered, and then we can perhaps move forward after multiple variable regression. We can move forward to the individual chapters of a functional form, and then dummy variables, and then moving on to relaxing of the assumptions. So with this, I would like to end this particular class. And if you have any doubts, again, you can always reach back to me. Thank you, guys. Bye bye.